इस वक्त टीआरपी स्कैम को लेकर मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे वही का रुख करते हैं। Of BARC. He was probably CEO from 2013 to 2019. He was arrested yesterday, and after producing in the court, we've got his custody till the 28th of this month. While he was CEO for those many years, reportedly there were quite a few allegations about manipulation of viewership data as well as TRP. However, again, reportedly those allegations made by different corners, including some of the whistleblowers, were suppressed. However, after the new dispensation took over, a third-party audit, a forensic audit of data was organized, and that third-party audit submitted its report in July 2020, this year. In our exchange of information with the BARC regarding different subjects, we've got this report as solicited by us from BARC. There are quite a few revelations in the report which we would just like to present. As per the report, these manipulations have been going on at least since 2016 to 2019. They've analyzed quite a few data, but the data being very huge, they analyzed a data of around 44 weeks in detail, especially about the genre of English news and Telugu news, where they found manipulation to a great extent. That data of 44 weeks beginning mid of 2017 mentions how the viewership and TRP data was manipulated by using three of their methodologies, in which two channels, especially as per the report, two channels are mentioned. How Times Now, which was probably on number one position in the genre of English news then, was thrown on number two position due to manipulation of data, and Republic TV was put on number one. There are quite a few evidences which are enumerated in the report. So as per the report only, I am stating all these things. The report also states that this manipulation continued since 2016 to almost like 2019. The report says in some of the cases, the ratings appeared to be pre-decided. The ratings appeared to be pre-decided. किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, and then accordingly the data was manipulated. The report also points towards the cartelization of some of the top officials, some of the top ex-officials of BARC. So normally it also mentions that there are three methodologies by which the data is screened and then analyzed. So one of the methods they've just mentioned, I'll just
mention them. One of them is the outlier method. Some of the other one is the meta rule, changes in the meta rule method, and third is the channel audience control. That's how the data was selectively chosen, analyzed, and thrown to showcase a particular TRP rating of a particular channel. The report also mentions quite a few emails and chats between the top officials which point towards all these kind of manipulations which are absolutely incriminating. Without naming the officials, a few excerpts of this chat just so that you can understand the gravity of the manipulation. One of the excerpt is, please find below numbers on English news. One person is writing to the other. Please find below numbers on English news. As required, Times Now numbers were changed while Republic is kept the same. Another excerpt is like, please find below update on English news channel for week so and so. Times Now, CNN News 18 will be changed. The impressions of Times Now had been decreased drastically across the universe. The impressions of Republic TV remained unchanged. Another excerpt in the email is depicting how the meta rules were changed or misused. Somebody is writing to somebody to do something. The response is like, don't think we should edit the statements. We can manage by changing the logic. So there are quite a few informal talks also, but since they were informal, we have not brought on record. There is also a mention of this manipulation being done for certain general entertainment channels also. That portion is also that portion is also being investigated. So in short, whatever our investigations were, so we started our investigation by registering the FIR on the 6th of October. So 6th of October onwards, we've made some investigations and collected different evidences. This report, which came in July 2020, it vindicates what our investigation we did in the later part without actually having any knowledge of this report. There are quite a few evidences that we've collected, and based on them only we've taken whatever actions we had to take. Names of certain persons arrested recently were figuring right from day one, but we actually waited for evidences to be collected, and once we had sufficient evidences with us, then only we went in for these arrests. We've already filed our first charge sheet based on whatever evidences we had collected. The first basic FIR was about manipulation of certain households, some social engineering that took place in certain households, some fixing of some households to watch certain television channels so that the TRP can be increased. Then the second thing that came was the dual frequency, the triple frequency on which the channel was aired. And now now it is discovered that not only the data that was coming in from the households
and the dual and triple frequencies, but whatever data was coming in, that was also manipulated at the head office level. So which data is to be fed for analysis and which data is to be eliminated, all those things is also like manipulated. So all these things would come in our evidence collection as the investigation progresses. But I can assure you that we have got very strong evidences with us, which are pointing fingers towards some of these officials, and as the investigation progresses, we'll be taking strong action on these incriminating persons. In all this, we must sincerely thank the present dispensation of BRC, who have been really very helpful in providing all the data required for investigation, and we sincerely express our thanks to them. Sir, a question. Yeah. Sir, wanted to know, are you saying that specifically numbers of the times change? Like you said that Times Now numbers are changed. So are you saying that Times Now was deliberately made number 2? As per the report, yes. And does it say that who were these people who were involved? Anyone from the competing channels or anyone that you were currently investigating? That normally the beneficiary of all this manipulation has to explain. What we have gathered till date is very clear in pointing fingers at the concerned persons. नमस्ते। क्राइम ब्रांच मुंबई ने 6 अक्टूबर से एक केस रजिस्टर किया था टीआरपी मैनिपुलेशन के सिलसिले में। उसी का प्रोग्रेस बताने के लिए ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल हमने एक अहम व्यक्ति को अरेस्ट किया है, मिस्टर पार्थोदास गुप्ता, जो कि एक्स सीईओ रह चुके हैं बीआरसी के 2013 से 2019 तक। उनके सीईओ रहते समय ऐसे कहा जाता है कि काफ़ी लोगों के एलिगेशंस थे, विसल ब्लोअर्स के एलिगेशंस थे कि वहाँ पर व्यूवरशिप का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, टीआरपी का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। हालांकि जैसे बताते हैं लोग कि वो जो एलिगेशंस थे उसको सप्रेस किया गया, लेकिन जब ये चेंज ऑफ चेयर हुआ तो एक थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया, जिसमें ये पूरा फॉरेंसिक डेटा का पूरा फॉरेंसिक किया गया, और उसने जुलाई 2020 में एक रिपोर्ट पेश की बीआरसी को ही, जो काफ़ी रिवीलिंग है। हमारा जो इंफॉर्मेशन हम मांगते रहते हैं बीआरसी से, उसमें हमको ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली प्राप्त हुई है, और ये रिपोर्ट का जो कंटेंट है वो काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग है। कुछ पोर्शंस उसमें का, उसमें बेसिकली यही बताया गया है कि 2016 से 2019 तक का डेटा ये मैनिपुलेट किया गया हुआ है। उसमें उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है 44 सप्ताहों का, जो कि मिड 2017 से आगे 44 हफ्ते का ये डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उस समय इंग्लिश न्यूज़ जॉनर का जो नंबर 1 चैनल था टाइम्स नाउ, उसको कैसे नंबर 2 पे डाला गया और रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 पे कैसे लाया गया, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है।
इसका पुलिस क्राइम ब्रांच पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट दिस रिपोर्ट इज़ वेरी रिवीलिंग। इसमें ऐसा भी लिखा है कि इसमें के कुछ केसेस जो है कुछ वीक्स में तो ऐसे लगता है कि जैसे प्री डिसाइडेड था कि किसको नंबर 1 बनाना है, किसको नंबर 2 बनाना है, अकॉर्डिंगली डेटा का मैनिपुलेशन भी किया गया है। ये रिपोर्ट इसके भी बारे में बात करते हैं कि ऊपर के कुछ ऑफिशियल्स जो है बीआरसी के उस समय के, इन्होंने एक कार्टेल बना के ये इसका रिगिंग या डेटा मैनिपुलेशन किया हुआ था। इसमें नॉर्मली उसमें बताया गया है कि 3 मेथोडोलॉजीज़ यूज़ होती है डेटा मेजरमेंट के लिए। डेटा कैसे स्क्रीन करे, कैसे डेटा उसको लाए, उसमें एक आउटलायर मेथड होता है, एक मेटा रूल मेथड होता है, एक चैनल ऑडियंस कंट्रोल मेथड होता है। तो इसमें किस तरीके से सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन किया था जिसकी वजह से किसको नंबर 1 पे लाना, किसको नंबर 2 पे रखना, किसको नंबर 3 पे डालना, इस टाइप का मैनिपुलेशन इनके कुछ टॉप ऑफिशियल्स ने किया हुआ है, ऐसा उसमें नमूद है। उसमें कुछ ईमेल्स और चैट्स का भी मेंशन है जो उनके सर्वर पे से बरामद किए हैं, जिसमें काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें उसमें आई है। उसका पूरा नाम या ये डिटेल्स ना करते हुए एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको आए, इसलिए एक छोटा सा 1-2 एक्सर्प्ट्स बताता हूँ ईमेल का। एक है, प्लीज़ फाइंड बिलो नंबर्स ऑन इंग्लिश न्यूज़ एज रिक्वायर्ड, टाइम्स नाउ नंबर्स वर चेंज्ड व्हाइल रिपब्लिक इज केप्ट द सेम। दूसरे इसमें था, प्लीज़ फाइंड बिलो अपडेट ऑन इंग्लिश न्यूज़ चैनल, टाइम्स नाउ CNN News 18 will be changed. The impressions of Times Now had been decreased drastically across the universe. The impressions of Republic TV remained unchanged. Similarly, Meta Rule के बारे में भी कैसे मैनिपुलेट करना, उसका भी एक छोटा सा उसमें एक्सर्प्ट है। I don't think we should edit the statements. We can manage by changing the logic. इस तरीके के काफ़ी चीज़ें उस रिपोर्ट में है, और जो कि एक साइंटिफिक रिपोर्ट है और जो ऑफिशियली उन्होंने इसको अपॉइंट करके ये बरामद की है। इसके अलावा भी कुछ जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स के बारे में उसमें मेंशन है, जो जिसकी तफ्तीश मुंबई क्राइम ब्रांच अभी कर रही है। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशंस हमने आज तक किए हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेशंस जो है ये एविडेंस के ऊपर ही बेस्ड थे। हालांकि कुछ जो भी रिसेंट अरेस्ट्स हुई है उनके नाम पहले से चर्चा में थे, लेकिन जब तक एविडेंस प्राप्त नहीं होता तब तक किसी को हाथ नहीं लगाया था। जब सफिशिएंट एविडेंसेस मुंबई क्राइम ब्रांच के पास आ गए तभी उनको अरेस्ट की गई है। ये सारी प्रोसेस में हम ज़रूर धन्यवाद कहना चाहेंगे बीआरसी का, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है बीआरसी का, जिन्होंने हमको सिंसियरली जो भी डेटा हमको चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के लिए वो हमको हमेशा उपलब्ध करके दिया है। थैंक यू। इस रिपोर्ट का आप कोट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के बारे में आप बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा कहा है कि टाइम्स नाउ के नंबर कम किए गए और रिपब्लिक के बढ़ाए गए, तो क्या ये इंडिविजुअली क्राइम ब्रांच ने डेटा वेरीफाई किया है जो आपके पास ऑलरेडी है, आया हुआ है? इंडिविजुअली क्राइम ब्रांच ने डेटा वेरीफाई किया है, उसके बाद आप क्या स्टेटमेंट? बेसिकली ये डेटा माइनिंग इज़ अ वेरी टेक्निकल जॉब। दिस टेक्निकल जॉब बीआरसी ने ये थर्ड पार्टी ऑडिट अपॉइंट किया था जिसमें ये सारा रिपोर्ट आया है। सो दे हैव एनालाइज्ड ऑल द डेटा बिकॉज दे आर प्रिवी टू ऑल दैट डेटा। जैसे हम कहते हैं कि 44,000 बैरोमीटर्स लगाए हुए थे, तो 44,000 बैरोमीटर्स का डेटा जो उनके सर्वर रूम में आता था उसका एनालिसिस करके वो सब एनालिटिकल रिपोर्ट, ये फॉरेंसिक का रिपोर्ट इसमें
पेश किया होगा। सर आपने बोला कि CNN न्यूज़ 18 के रेटिंग्स अप एंड डाउन होते रहे लेकिन रिपब्लिक नंबर 1 बना रहा, तो ये जो बीआरसी के एक्स ऑफिसर थे उनको मॉनिटरिंग फंड कौन देते थे, उनको फायदा क्या होता था ये सब करने से? या ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, दैट विल सर्टेनली इन्वेस्टिगेट बिकॉज अनलेस देर इज़ अ बेनिफिट देर कोई ऐसा करेगा नहीं, बट जो भी कर रहा है वो कुछ ना कुछ बेनिफिट हुए बगैर करेगा भी नहीं। आपके इन्वेस्टिगेशन में सामने है कि कौन पेमेंट दे रहा था या फिर कौन भी करवा रहा था? या अभी हमारा जो हमारा पहला चार्जशीट हमने ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, उसमें भी काफ़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के एविडेंसेस हमने कोर्ट में सादर किए। त्यांनी 44 वीक्स जे घेतले, 44 वीक्स जो लिए थे वो मिड 2017 से आगे के 44 वीक्स है, बट द रिपोर्ट ऑल्सो सेज कि वो एक सैंपल के तौर पे लिया था, बट अदरवाइज 2016 टू 2019 दे आर सेइंग कि इट इज़ मैनिपुलेटेड। नहीं, किती वेळा नहीं सांगता येणार, इट इज़ ऑल एंड थ्रू इट हैज़ बीन मैनिपुलेटेड। Yeah. Little difficult for me because they are technical things, but outlier is normally whenever statistically when you say एक घर है जिसमें मान लो 12 घंटे अगर टीवी चलता है और एक ही चैनल चलता है, दैट इज सर्टनली दैट डेटा शुड बी एलिमिनेटेड, सो दैट्स एन आउटलायर डेटा। तो ऐसा आउटलायर डेटा आपने एलिमिनेट करना चाहिए व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग अ मीडियन ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल डेटा, तो those things should be no, so they were किसको आउटलायर डिसाइड करना किसको नहीं करना, मेटा रूल में क्या लॉजिक लगाना, सो दैट ये लॉजिक अगर हम एक सिंपल आई कैन से एनालॉजी कैन बी ऑफ एन RFP, हम जब भी RFP फ्लोट करते हैं तो ये कंपनी क्वालिफाई हो ये ना हो, इसके लिए फिर ये कंडीशन डालते हैं या वो कंडीशन डालते हैं, सो काइंड ऑफ अ मेटा रूल लॉजिक ही चेंज कर देना सो दैट वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। नो, द सिटीजन द चैनल ऑडियंस कंट्रोल आई एम नॉट वेरी क्लियर, दैट वाज द CAC, चैनल ऑडियंस कंट्रोल। No, so they have also mentioned a few general entertainment channels also, so that we are investigating into. I guess a few of them put down their papers. After the report, a few of them put down their papers. Resigned, yeah. Sir, आपको किसी दो पिछले शिक्षा होती थी, तीन होती है, डबल सेक्शन से एक हाउसहोल्ड फिक्सिंग। Yeah, we were aware of only those two. हाउस द थर्ड इज द डेटा कौन सा डेटा लेना कौन सा डेटा नहीं लेना, यही अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ तो देन इट इज़ अ वेरी हाई लेवल मैनिपुलेशन। sorry come again। Yeah, which method, that is not very clear which method, but I mean must be a mix of the three methods। Sir, has any confession or any detail come from the interrogation of Partha Das so far indicating whatever this report says, or any of the others? Have any of them confirmed anything of this sort and said how they were indulged in this? No, not yet, not yet। Yeah, because he was the CEO and probably driving it as per the conversations that are reported in the excerpts what I mentioned, that shows that he was probably the master। But you don't know yet as to why he was doing it. What was his motivation? Yes. Was there financial? So that connecting the dots is to be done in the investigation।
No, that is what the same question basically in a different way. लेकिन इतना मैनिपुलेशन क्लीन करके मैनिपुलेशन हो रहा है, कोने में कुछ तो बोल रहा हो ना कि आप ये करो, आप इस तरह करो, इसको So obvious finger goes to the beneficiary. Whosoever is getting benefited out of the TRP rating change. मनी ट्रेल और मनी रिलेटेड टू दिस इशू. Yeah, so especially about this, that is under investigation. Yeah. 6 ऑक्टोबर 2020ला मुंबई क्राईम ब्रांचने TRP मॅनिप्युलेशन संदर्भात एक केस रजिस्टर केली होती. त्याच्यामध्ये काल एक इम्पॉर्टंट अरेस्ट करण्यात आली आहे मिस्टर पार्थो दास गुप्ता, जे की CEO होते BARCचे 2013 ते 2019 पर्यंत. आणि असं म्हटलं जातं की त्यांच्या कार्यकाळामध्ये बऱ्याचशा तक्रारी यायच्या. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि मेथोडोलॉजी के साथ छेड़छाड़ की गई. एक खास चैनल के इंग्लिश चैनल्स की बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक खास इंग्लिश चैनल के इंप्रेशंस को कम कर दिया गया और वहीं दूसरे इंग्लिश चैनल के इंप्रेशंस को रिटेन किया गया ताकि वो पर्टिकुलर इंग्लिश चैनल गेन कर सके इन टर्म्स ऑफ TRP. खुलासा करते हुए कि किस तरह मेथोडोलॉजी फ्लॉड थी, ये मुंबई पुलिस द्वारा कहा जा रहा है. बाग के मौजूदा प्रबंधन की तारीफ भी की जा रही है, तो वहीं बाग के ही हेडक्वार्टर्स में पूर्व अधिकारियों द्वारा धांधली की बात भी कही जा रही है. 2016 से 2019 तक ये डेटा छेड़छाड़ की बात की जा रही है, मुंबई पुलिस कह रही है. साथ ही ये भी कह रही है पार्थो दास गुप्ता, जो कि फॉर्मर CEO हैं बाग के, वो इसके मास्टरमाइंड हो सकते हैं. जो बेनिफिशियरी है यानी जिस चैनल ने इस TRP का फायदा उठाया है उस पर उंगली उठेगी, ये मुंबई पुलिस कह रही है. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं. थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बहुत सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं. 6 अक्टूबर को इस मामले में FIR दर्ज की गई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई. तो जो अभी मुंबई पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कई बड़ी बातें. एक तो ये कि 3 तरह से, एक नहीं 3 तरह से डेटा से छेड़छाड़ की बात मुंबई पुलिस कर रही है. मुंबई पुलिस ये कह रही है कि एक खास चैनल को नंबर 1 बनाया गया और जो चैनल नंबर 1 था उसके इंप्रेशंस को कम किया गया. इंफॉर्मेशन हम मांगते रहते हैं BARC से. उसमें हमको ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली प्राप्त हुई है और ये रिपोर्ट का जो कंटेंट है वो काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग है. कुछ पोर्शंस उसमें का, उसमें बेसिकली यही बताया गया है कि 2016 से 2019 तक का डेटा ये मैनिपुलेट किया गया हुआ है. उसमें उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है 44 सप्ताहों का, जो कि मिड 2017 से आगे 44 हफ्ते का ये डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उस समय इंग्लिश न्यूज़ जॉनर का जो नंबर 1 चैनल था टाइम्स नाउ, उसको कैसे नंबर 2 पे डाला गया और रिपब्लिक TV को नंबर 1 पे कैसे लाया गया, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है. इसका पुलिस क्राइम ब्रांच पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट दिस रिपोर्ट इज़ वेरी रिवीलिंग. तो देखिए, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 तरह से डेटा से छेड़छाड़ की गई, ये मुंबई पुलिस कह रही है कि जो BARC बाग के नाम से जिसे आप जानते होंगे, उसके माध्यम से किस तरह से डेटा को, यानी जो रेटिंग्स थी उनको मैनिपुलेट किया गया, उनसे छेड़छाड़ की गई. 2016 से 2019 44 हफ्तों की बात मुंबई पुलिस यहां पर कर रही है, जहां बाग की संलिप्तता के साथ, बाग की पूर्व अधिकारियों के साथ मिलकर
टेलीविजन रेटिंग्स को मैनिपुलेट किया गया, खासतौर पर इंग्लिश न्यूज चैनल्स की रेटिंग्स की बात यहां पर मुंबई पुलिस कर रही है। कल हमने एक अहम व्यक्ति को अरेस्ट किया है, मिस्टर पार्थोदास गुप्ता, जो कि एक्स CEO रह चुके हैं BARC के 2013 से 2019 तक। उनके CEO रहते समय ऐसे कहा जाता है कि काफ़ी लोगों के एलिगेशंस थे, विसल ब्लोअर्स के एलिगेशंस थे कि वहाँ पर व्यूवरशिप का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, TRP का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। हालांकि जैसे बताते हैं लोग कि वो जो एलिगेशंस थे उसको सप्रेस किया गया, लेकिन जब ये चेंज ऑफ चेयर हुआ तो एक थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया, जिसमें ये पूरा फॉरेंसिक डेटा का पूरा फॉरेंसिक किया गया और उसने जुलाई 2020 में एक रिपोर्ट पेश की BARC को ही, जो काफ़ी रिवीलिंग है। तो मुंबई पुलिस साफ तौर पर यह कहते हुए खास चैनल की TRP को बढ़ाने के लिए, उसे नंबर 1 बनाने के लिए डेटा के साथ बड़े लेवल पर छेड़छाड़ की गई है। मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव, 3 बड़ी बातें, एक तो 3 मेथड से ये छेड़छाड़ की गई डेटा के साथ, एक पर्टिकुलर चैनल को, यहाँ पे इंग्लिश चैनल्स की बात वो खास तौर पर कर रहे हैं, हालांकि वो एंटरटेनमेंट चैनल्स की तरफ भी उन्होंने बात कही, लेकिन उसे लेकर उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन इंग्लिश न्यूज चैनल की तरफ लेकर उन्होंने साफ ये कहा कि जो चैनल नंबर 1 था उसे नंबर 2 बना दिया गया, उसके इंप्रेशंस को घटाकर, और एक पर्टिकुलर चैनल को नंबर 1 बना दिया गया। बड़े लेवल की साजिश, पूर्व अधिकारियों के शामिल होने की बात करें, और पार्थोदास गुप्ता जो कि फॉर्मर CEO हैं BARC यानी बाग के, उन्हें मास्टरमाइंड बता रहे हैं। देखिए, जाहिर कि जिस तरीके से अभी खुलासा किए गए हैं मुंबई पुलिस ने, और स्पष्ट कहा कि 3 अलग अलग इसमें तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। जो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया गया है और किस डाटा की स्क्रूटनी करनी है उस डाटा का भी इस्तेमाल किया गया है। आखिर कौन से डाटा लेने हैं TRP के लिए, TRP की रेस के लिए, इसका भी इस्तेमाल किया गया है। और इन 3 अलग अलग हिस्सों के जरिए इस बात को खुलासा हुआ है कि इस मामले में कहीं ना कहीं किसी खास उद्देश्य से किया गया है, और जिस तरीके से जो चैनल नंबर 1 पर था उसको हटाकर नंबर 2 पर करना और फिर दूसरे चैनल को नंबर 1 पर पुश करना, ये सारी बातें कही गई है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि इसमें कई और भी ऐसी चीज सामने आ सकते हैं, तो आने वाले दिनों में ये पता चल सकता है कि आखिर इसमें पैसे का लेन देन हुआ है कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से अंदेशा बताए गए हैं कि किसी खास व्यक्ति के निर्देश पर, किसी खास के निर्देश पर ये सारे किए गए हैं, क्योंकि इस मामले में पार्थसारथी जो होता है वो उनके कार्यकाल में ही हुए हैं। और जुलाई 2020 में जो डाटा जो ऑडिट किया गया, थर्ड पार्टी के जरिए ऑडिट किया गया है, जो एक तरह से साइंटिफिक ऑडिट की मानी गई है, और उसी ऑडिट के आधार पर बहुत सारे इसमें खुलासे हैं। खास करके जो ईमेल है, जो अधिकारियों के बीच के जो ईमेल का खुलासा हुआ है, उस ईमेल के जरिए कई ऐसी बातें सामने आई हैं कि आखिर कौन सा डाटा पुश करना है और किसे आगे लेके जाना है। इन सारी चीजों का इसमें जिक्र किया गया है, जो कि एक तरफ से निर्देश करता है कि आखिर किसी खास के निर्देश पर और ये सारी कवायदें की गई हैं। हालांकि जिस तरीके से कहा गया है कि जो अंग्रेजी 2 चैनलों के बाद एक तेलुगु चैनल का नाम आया गया है, इसके अलावा उन्होंने निर्देश जरूर किया है कि कुछ एंटरटेनमेंट चैनलों के साथ भी इस तरह की बात की गई है। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर मुंबई पुलिस आपसे यही कहना चाहती है, अगर आप ये सोच रहे थे एक ऑडियंस होने के नाते, टीवी ऑडियंस होने के नाते, कि आप किसी चैनल को नंबर 1 या नंबर 2 या किसी चैनल को टॉप पर ले जाते हैं, किसी चैनल को आप नीचे रखते हैं, दरअसल ये काम मुंबई पुलिस ये कह रही है, ये काम तो BARC यानी बाग के अधिकारी, बाग वो एजेंसी जो टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट करती है, ऑडियंस रेटिंग मेजरमेंट करती है, वो एजेंसी, उसके पूर्व अधिकारी उसमें मिले हुए। तो ये नंबर 1 नंबर 2 बनाने का काम उन पूर्व अधिकारियों की मिली भगत के साथ किया जा रहा था, डेटा से छेड़छाड़ करके। दर्शकों की पसंद नहीं थी चैनल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.